लिखना है, हम उसको करवाएंगे वापस। Those who okay, did you find any problem in the paper? No. No, ma'am. No, ma'am. Still you read question and I try to answer, so that once you all get the idea what was there in the test. Okay, chalo zara. If anyone is having that paper, you got that paper in the group. So any of you open and start reading one by one all questions. Ma'am, can I read? Who is this? Ma'am, Dhwanit, ma'am. Dhwanit, yes. Can I read, ma'am? हाँ, first. Ma'am, रुको ma'am. open. Ma'am, we have to take out the paper. So we are just discussing. We are just discussing the answers. Yes. Ma'am, what we have to take and sit? Huh? What we have to take and sit? You have to keep your books ready. Both the books with you. Yes. Question number 1. Write the meanings of the following as given in the lesson and frame sentences from them. Number 1. Counselors. Number 1 is Counselors. counselors. Yes, ma'am. Okay. So meaning of counselors, group of people chosen to give advice or to make rules. That means ministers. In short, it is minister. Now, whatever you have written. Now, the sentences, so you have framed now or you have left? Yes, ma'am. Sentence is framed. Yes, ma'am. Good. One more thing. Whenever you get any paper, any question paper, it is your duty not to leave at all. Whether you don't know the answer, but you know the story. So if you know the story, you can recall something. You can write it in short, but write something. Don't leave any question as it is. Okay? Ma'am? Hanji? My first question is counselor, so it will come a member of council. नहीं, member थोड़ी है, member of councillors नहीं है. A First, group of people choose to give. The first question is council or councillors? No, ma'am. Counselors. Counselors. Councillors means members of the council. Then to it will be members of the council. Okay? members of council. मैम मैंने group of people choose to give advice लिखा है. मैम फर्स्ट वन का काउंसिलर तो है, तो मैंने टेक्स्ट बुक में देखा तो मेंबर ऑफ काउंसिल है. हाँ, तो काउंसिलर्स का मेंबर ऑफ द काउंसिल ही है. मैम मैंने स्कूल का लिखा है ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस. अरे ये स्कूल का नहीं है, टेक्स्ट बुक का ही है. टेक्स्ट बुक में दोनों अलग अलग गिवन है. ओके मैम. नेक्स्ट इज Hermit. hermit, a person who lives alone and leads a simple life. Yes, ma'am. Then Third. Affairs. affairs means things or Mattresses matters. and business. Huh? Things, mattresses, business. See, sentences तो सबके personal होंगे, सबने अलग अलग बनाए होंगे. Okay, so go now. Right now, I'm not discussing. Just meanings. Affairs means matter. Number 4. Painted. Ma'am, I have written things, matter and business. Then okay, na the three are all have same meaning. Affairs. Now next one is Fainted. Number 4. Fainted. fainted means lost consciousness. Ma'am, I have written that.
Okay. Loyal is correct. Loyal. Yes. लॉयल तो कुछ नहीं हुआ. फेंटेड का मतलब तो बेहोश हो जाना. Lost consciousness. अब नेक्स्ट. मैम, हेलो मैम. हाँ नेक्स्ट. Question number 2. Answer the following in brief. Number 1. What was the first question? What was the first question? What Yes. is the right time to What begin is the right time something? to begin something? Correct. Was the first question. Okay. Another next one. What is the second? What was the second question? Which people should he listen to? यहाँ पर wait. अगर ऐसा आता है तो आपको लिखना है which people should a king listen to. आप ही नहीं लिखेंगे. अलग से क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप कंटिन्यूएशन में तो है नहीं, तो यहाँ पर ही का मीनिंग कैसे मालूम पड़ेगा? Then here you have to write the king in place of he. Moreover, one more thing, if the question is of 1 mark, then okay that you are writing 1 sentence. But if the question is more than 1 mark, that means 1.5 or 2, then you should also be writing something else except 1 sentence. You should write about the author, or you should tell what is there given. That in this chapter, this is the name of the chapter is 3 questions, and here a king has some query and he is doubtful towards his life and he tries to find his answers. इतना लिखेंगे ना एक्स्ट्रा, उसके बाद मेन आपका आंसर आ जाना चाहिए. 1 mark का ठीक है, okay, 1 sentence, but if more than 1 mark, then you should write this much. Okay, whether your answer is correct. Yes, ma'am. But if the marks are more, weightage is more, then you have to write more, or else you will get not full. Suppose 1.5 is there, you will get only 1. Next question. What was the third question? The third question was what is What the is most important thing for to him do? to do? What is important to do? Him नहीं लिखना है आप लोगों को. What is the most important thing for a king to do? ये सब कॉमन सी चीजें होती हैं जिसमें आपको समझना है. हिम कब लिखेंगे? जब हमारे पास ऊपर बहुत सारा स्टफ है कि हाँ हम इसी की बात कर रहे हैं, बट क्वेश्चन ही एकदम अलग है. So there you have to mention that you are talking about a king. Next. Who came running towards the king and hermit? The bearded man. The bearded man was came running towards the king and the hermit. Correct. Next. Who said to whom? हाँ? Who said to whom? चलो भाई बोलो. Number 1. Number 1, you are tired. King to hermit. Hermit Yes, say, ma'am. hermit said this to the king. hermit. King said King to said hermit. to hermit. King said to hermit. Yes, ma'am. हाँ, king said मैंने to अपने hermit. प्रैक्टिस में भी कराया था. Number 2. Let me take this spade and work in your place. Second, King to said to hermit. King hermit. said this to the hermit. Number 3. Here comes someone running. Wait, मुझे तो देखने दो. हाँ, क्या बोला तुमने इसका now you rest वाले का? Here comes someone running. Who said to whom? Yes, ma'am. said to the king. Hermit to the king. Correct. Hermit to the king. Next. Blanks. Fill in the blanks. Filling the blank. मैम थर्ड वन का आंसर क्या आएगा? Third question बोलो. Hermit said to the king. Here comes someone running. Hermit to king. Hermit said to the king. Hermit said to the king. Now. Blanks number 1. The king turned around and saw a blank running towards them. Beard man. Bearded man. Wounded man. Bearded man. हम देखो ये wounded man second लिखेंगे तो हम के मिलेंगे. नीचे ही है ये लाइन. Same to same.
बोलो मैम। Hermit live in a the hermit live in a blank wood. Hut. हट। फिर से बोलो। Hut. The hermit live in a blank. Ma'am, wood. वुड, Wood. वुड आएगा। मैम hut लिख सकते हैं. नहीं, मैम मैंने तो लिखा है पर। the hermit lived in a wood, page number 8, last second paragraph, first line. Number 3. The king saw the hermit digging in dash in front of his hut. Ground. Correct. Number 4. Hermit Digging listening the to the ground. king, Yes, digging the ground. Number 4. The hermit listened to the king but did not dash. Ma'am, answer. Did not answer. Correct. Next. मैम reply Number 5. When the beard Grammar fell section. to the king, blank and fell to the ground. फिर से बोलो, नहीं समझ में आया। Number When 5. the beardment reached to the king, he blank and fell to the ground. Fainted. हाँ, he fainted and fell to the ground. मैम. Yes, ma'am. मैम When the bearded man reached the king, he fainted and fell to the ground. मैम what is the answer Anji. of fourth one? Answer. Next. Grammar section, ma'am. Grammar section. बोलो, कोई क्लियरली बोलो, लाउड बोलो, मुझे ना समझ नहीं आ रहा। Ma'am, in phone Find the ma'am, in noun phone number in the we cannot have following replied. sentences. The soldiers were rewarded for their bravery. Soldiers and bravery. What we have to do? Find the noun. Nouns. Yes. Ma'am, Soldiers ma'am. and bravery. Correct. Soldiers Ma'am. and bravery. Second. ma'am, in fourth A number, ma'am, committee of 5 was appointed. Five is noun. और कमेटी भी आएगा, कमेटी भी आएगा। मैम एक लिखा हो तो मार्क्स मिलेगा. एक मिनट रुको भाई, कोई मैम मैम बोल रहा है। दक्ष, यस। मैम इसमें जो है ना फाइंड द नाउन में मैंने उसका टाइप ऑफ नाउन भी लिखा है और वो भी लिखा है, तो चलेगा? पहले वीडियोस ऑन कर लो। मैम मेरा ऋत्वाम, श्लोक, ध्वनित, मैम मैं तो बोलती है। ma'am, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ऋत्वा, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं? यस मैम, हमारे आने वाले हैं। हाँ, यस मैम, हमारे मैम एग्जाम्स नहीं है, पीरियोडिक टेस्ट है मैम। हाँ, दैट इज ओके। एक मिनट, मुझे ऋत्वा से बात करने दो। वेयर शी इज? मैम मैं और ऋतु एक ही क्लास में है और एक ही स्कूल में। हमारी पीरियडिक टेस्ट आने वाली है, एग्जाम नहीं। एक ही क्लास में हूँ भाई, मैं भी एक ही क्लास में हूँ। कौन कौन? ऋत्वा और मैम ऋतुआ, मितवा और ध्वनित हम तीनों एक ही क्लास में एक ही स्कूल में है। अच्छा, तो तुम्हारे आने वाले हैं। अब तुम्हारे जो whatever syllabus is, just tell me that. मैम 1 मिनट। मैम कहना से मैम हाँ दक्ष, आप बोल दो। हाँ मैम, मेरी और अंश की एग्जाम आने वाली है 3 जून, जुलाई। 3 जून ma'am, से। may I say? 3 जुलाई से। Ma'am, may I say? अरे भाई, मुझे किसी एक से एट अ टाइम बात करने दो, पूरा समझने। दक्ष का और अंश का जो है 3rd से स्टार्ट हो रहा है। अंश, डू यू नो द सिलेबस? यस मैम। व्हाट इज दिस? मैम ऑफ इंग्लिश ओनली। हाँ जी। मैम द सिलेबस इज चैप्टर 1, 2, 3 ऑफ हनीकॉम्ब। मैम 1 मिनट। मैम मैं हमारा बोलूं सिलेबस? 1 मिनट यार, बीच में सारे बोलोगे तो नहीं आएगा, ऐसे किसी का भी नहीं याद रहेगा। मैम 1 मिनट, आई एम ओपनिंग। मैम मेरा ओपन है, मैं बोल दूं? मैम यार
अंश आप 1 मिनट रुकना, पहले मैंने मुझे खोल दिया है, मैं बोलूं मैम? दक्ष, मैं और अंश एक ही स्कूल में, बोल दो मैम। चैप्टर 1 हाँ 1 and 2 in that honeycomb, and then in supplementary reader there are chapter the squirrel and the rebel, the tiny teacher and bringing up Kari. That 2 chapter, and in poem the squirrel, the rebel, writing task, paragraph writing, story writing, and grammar topics covered. grammar what? Topics that are covered. That are covered, which are covered in school. Ma'am, that we have done in tuition, that all. They all. So only bringing up Kari is left. Rest all we have done. Yeah. And ma'am in Paragraph writing and story writing also. मैम आप एक दिन वो फिगर ऑफ स्पीच भी करा सकते हो? कौन कौन सी करवाई है आपको? मैम बहुत सारी करवाई। थोड़ी तो मैं करवा सकती हूँ, सब एक साथ करवाऊंगी तो मिक्स हो जाएगा। ब्रिंगिंग अप करी है, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये तीनों मैं करवा दूंगी आज इफ वी गेट टाइम। यस नाउ रुतवा। मैं बोलूं हम तीनों का? मैम यस रुतवा, विच चैप्टर्स? मैम in honeycomb chapter 1 to 3 and poem 1 2. Wait. So we have done all 3 now? Yes, ma'am. And in supplementary reader, there are chapter 1 and 2. 2 means bringing up Kari. Yours is also left and theirs is also left. So yes, I will explain that. Okay. And in grammar, what is there? Kind of sentences and preposition. We have done this also. Yes, ma'am. Better. Okay. हाँ पहले हम बाकी का paper. Ma'am, in my school exams are also there. Whose? Ma'am, Harsh. Harsh, yes, Harsh. Yes, ma'am. मैम मेरी स्कूल में है ना मैम, मैं सिलेबस बता देता हूँ। मैम मेरी स्कूल में 3 क्वेश्चन, द स्क्विरल, द टाइनी टीचर एंड टेंसेस आने वाले हैं। The tiny teacher, the squirrel, and 3 questions and tenses. And done this much. Yes, ma'am. And in grammar? Grammar, ma'am, tenses. Okay, so Harsh, we have done already all this much. Have you done Yes, here? Ma'am, I was having. Yes, ma'am. Ma'am, I was telling that I am having doubt in literature, ma'am. Ma'am, in yesterday's Okay, so exam. those who are Sorry, having... ma'am. Sundays. Ma'am, Sunday's exam, ma'am, I have doubt, ma'am. Can I say? Yes, ask. Yes, ma'am. In filling the blanks, in 4th number, if we write replied, it is okay. If you write what? Replied, ma'am, but did not replied. The hermit listened to the king, but did not replied. See, actually, the fill in the blanks are from textbook only. But okay, first time I'm giving you relaxation. But from next time, if you write the synonym, okay, but not the exact word, then I will give you half marks. Okay? I have also done reply. Okay, ma'am. Okay. हाँ अंश, मैम मैंने भी रिप्लाई लिखा है। वो मैंने क्या बोला अभी कि इस बार ओके है, मैं आपको एक्सक्यूज दे रही हूँ, बट नेक्स्ट टाइम अगर आप सिमिलर वर्ड लिखते हो तो आपको हाफ मार्क मिलेगा, नॉट द फुल, बिकॉज ऑलरेडी मैंने बहुत इजी वाले दिए थे। Yes, ma'am. अच्छा चलो आगे हम वो कर रहे थे ना डिस्कशन बाकी के Yes, ma'am. The class is turning grammar. Class and grammar. Correct. Yes. Class and grammar. Next. Number 4. The Godavari overflow its blank every year. Godavari. Listen. ऐसे बीच बीच में मत बोलो, एक बोल रहा है उसको बोलने दो। मैं बोलूं मैम? हाँ बोलो।
Number 5 या number 4? Number 4. The Godavari overflows its banks every year. Godavari and banks. Yes, ma'am. Godavari and banks. Number 5. Cleanliness is next to godliness. Cleanliness and godliness. Cleanliness and Correct. godliness. Both. Yes. Question number 2. Write the kind for the following nouns. Number 1. Woman. Common. Common. Common noun. Number 2. First word is what? Woman. Woman. Common. अरे word को बोलने दो. Woman. Woman. हाँ, common. Number 2. Wisdom. Abstract. Abstract noun. Correct. Number Swami 3. Vivekanand. Vivekanand. Proper noun. Number 4. Kettle. Collective. Candle. Cattle. Collective. हाँ, collective. Number 5. Strength. Abstract noun. Number 5 का क्या बोला? Abstract. Abstract noun. Word. Strength. 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 हाँ, okay. Question number 3. Write the feminine gender for the following. Number 1. King. Queen. Number 2. Lord. Lady. Lady. Correct. Number 3. Uncle. Aunt. Number 4. Dog. Dog. Bitch. Bitch. B-I-T-C-H. B-I-T-C-H. Number 5. Lion. Lioness. Question number 4. Change the number for the following. Number 1. Thief. Thieves. Thieves. F की place पर V-E-S. P-E-S. Number 2. Volcano. Volcanoes. Volcanoes. Volcano. Number 3. Pony. Ponies. 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 Y की place पर I-E-S. Number 4. Mouse. Mice. Number 5. Tax. Taxes. Yes. मैम हो गया मैम खत्म. Done. Yes मैम. तो bringing up कार्य कर लेते हैं आज. What मैम? Bringing up कार्य. Yes, ma'am. आपके एग्जाम की डेट कौन सी है रुतबा? मैम 28. 28 से स्टार्ट हो रही है सारी एग्जाम. और इंग्लिश का कब है? मैम 4th है मतलब 30 को होगी शायद. रुको मैम चेक कर लेता हूँ. इंग्लिश की मैम 1 तारीख को. मैम फर्स्ट को है. फर्स्ट को क्या डे होगा? थर्सडे. हाँ, तो मेरा वेडनेसडे को आएगा ना लेक्चर? यस मैम. हाँ, तो ठीक है, मतलब तब हमारा रिवीजन हो जाएगा. चलो ब्रिंगिंग अप करी पढ़ लेते हैं अभी. Also starting. हाँ, In my school, exam are also there. from which date? 12th July. Yes, ma'am. 12. You all have given your dates and syllabus to Sakshi ma'am. Yes, ma'am. ma'am. So I will ask her. Okay. Okay, ma'am. Now. मैम मेरी अभी डेट और हाँ. मैम डेट और सिलेबस दोनों नहीं आए हैं इसलिए मैंने सेंड नहीं किया. हाँ, तो जब आ जाएंगे तो कर देना. वैसे हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर लिया है ऑलरेडी. हमारा कुछ पीछे नहीं होगा. जो भी आपके एग्जाम में आएगा ना, आई होप सो कि अलग से कोई चैप्टर नहीं हो. और एल्स वी हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग. यस दक्ष. Ma'am, can you take figure of speech in next lecture? क्या? Figure of speech in next lecture. फिगर ऑफ स्पीच में थोड़ी सी ले लूंगी. सारी करवाऊंगी तो आप वो हो जाएंगे कंफ्यूज. कुछ ले लूंगी. मैम C for shape, simile, metaphor और personification ही चाहिए. ठीक है मैम प्रिपरेशन आपने करवाए? हाँ,
प्रीपोजिशंस आपने करवाए हैं? कब से करवा दिए? कितने सारे उसकी एक्सरसाइज करवाए थे? कितने सेंटेंसेस थे? बहुत सारे। मैम आई हैव मैम दिस तब मैं नहीं था। लाइफ साइकिल ऑफ एंट. हाँ, Life cycle of ant. means what do you want to say? Ma'am, I have made a life cycle of ant. Correct. Then show it to your science teacher. Right now we are bringing up Curry. Second chapter. English work. Second chapter of supplementary reader. Now no one will speak. Curry, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. Now एक 5 months का बेबी है, एलिफेंट बेबी, वो अपने एक उसको जिसने रखा हुआ है वो 9 years का है, ठीक है, उसको वही रखता है और वही उसका फ्रेंड है और उसके साथ ही वो बड़ा हुआ है. Curry doesn't eat much, just about 16 kilograms of delicious twigs a day. मतलब वो बहुत नहीं खाता. ये एक sarcastic वे है, मतलब कि टोंट मारने वाला कि वो ज्यादा नहीं खाता, बस 16 kg of fresh twigs. Playful and sensitive, Curry saves a boy from drowning. अब ये sensitive भी है, playful भी है और एक बार इसने एक बॉय को डूबने से बचाया. चलो, Curry, the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. Curry जब मुझे दिया गया तब वो 5 month old था और मुझे दिया गया ताकि मैं उसका ध्यान रख सकूं. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. मैं 9 years का था. Please mute everyone. मैं 9 years का था और जब मैं उसके कांटेक्ट में आया तो अगर मैं अपने टिपटो पे मतलब ऐसे पंजे ऊपर करके खड़ा होता था तब मैं उसकी कमर तक पहुंचता था, जबकि वो 5 months का था और मैं 9 years का. ठीक है. He seemed to remain that high for nearly 2 years. वो 2 साल तक उतना टॉल रहा. We grew together. हम दोनों एक साथ बड़े हुए. That is probably when I never found out just how tall he was. मतलब मुझे तब उसके बाद पता नहीं चलने लगा कि वो कितना टॉल है. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. अब वो एक pavilion में मीन्स ऐसी प्लेस थी जहां पर जो एरिया होता है ऐसा एरिया जहाँ पे थैच रूफ यानी कि जो तिनके होते हैं ना घास फूस उसकी रूफ थी और वो जो बड़े बड़े थिक ट्रीज होते हैं ना उनकी बार्क के ऊपर वो रूफ लगाई थी और उसको अंदर वहां पर वो रहता था और वो इसलिए थिक रूफ वाली थी, थिक बार्क वाली थी ताकि अगर करी कभी इधर उधर मूव करे तो वो जो इसके रूफ वो उसके जो बार्क है वो हिले ना, इसीलिए वो थिक ट्री की ली थी, नहीं तो वो थोड़ा सा भी मूव करता तो वो गिर जाती. One of the first things Curry did was to save the life of a boy. सबसे पहले करी ने एक बॉय की लाइफ सेव की. Curry did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. बहुत नहीं खाता था लेकिन उसको फिर भी 40 pounds twigs चाहिए होती थी एक दिन में chew करने के लिए और खेलने के लिए. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. हर रोज मैं सुबह उसको रिवर में नहाने के लिए लेकर जाता था. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. वो क्या करता था, किनारे पर बैठ जाता था और मैं उसकी बॉडी पर मिट्टी लगाकर रब करता था ताकि वो क्लीन हो जाए और 1 घंटे तक ये प्रोसीजर करता रहता था. After that he would lie in the water for a long time. उसके बाद जब उसकी बॉडी पे मिट्टी से मैंने रब कर लिया अब वो जाकर रिवर में बहुत देर तक बैठता था.
On coming out, his skin would be shining like ebony. और जब वो आता था रिवर से बाहर तो उसकी स्किन एबोनी वो होती है ना, एबोनी क्या होती है? मैम व्हाट इज द चैप्टर नेम? ए हु इज दिस यार? कौन है ये? श्लोक होगा? यस मैम। श्लोक की तो समझदारी पता है मुझे। श्लोक, यू टेक अ नैप। जैसे हाथी दांत वगैरह होते हैं ना, जिस मटेरियल के बने होते हैं उसको ही बोलते हैं, और उस बहुत शाइनिंग वाले होते हैं। तो जब वो बाहर निकलता था तो उसकी बॉडी उसी एबोनी की तरह चमकती थी। एंड ही वुड मैम वो फील चैप्टर का विद नेम प्लेजर। और क्या? मैं अभी भी पूछ रहा है चैप्टर का मैम नेम। वो चैप्टर का नेम पूछ रहा है, कौन सा चैप्टर है वो? मैम मैंने अब नहीं पूछा। अरे भाई सुनो, चैप्टर है ब्रिंगिंग अप करी, सेकंड लेसन है सप्लीमेंट्री रीडर में, और हम उसके सेकंड पेज पे हैं। ओके। वो बहुत खुश होता था जब वो बाहर आता था और मैं उसके ऊपर वाटर डालकर उसको रब करता था, तो वो बहुत खुश होता था। Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant. फिर मैं उसको उसका कान पकड़कर आगे लेके जाता था, क्योंकि एक एलिफेंट को आगे लेके जाने का सबसे इजी वे यही है। And leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. और उसको जंगल के किनारे पर छोड़ देता था और मैं खुद वापस फॉरेस्ट में जाकर उसके लिए ट्विग्स, शाखाएं, ओके, ल्यूशियस मतलब कि टेस्टी, टेंडर, ताजी ताजी ट्विग्स लेकर आता था ताकि वो रात को खाने में ये खा सके। One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. और किसी भी इंसान के पास इन ट्विग्स को कट करने के लिए एकदम शार्प कुल्हाड़ी एक्स होनी चाहिए। It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. और एक्स को शार्प करने के लिए भी आधा घंटा लगता है। तो पहले उसको शार्प करने के लिए 1 घंटा पूरा लगा था। फिर जब वो एक्स शार्प हो जाती है ना, कुल्हाड़ी शार्प हो जाती है, तभी हम ट्विग्स को काट सकते हैं। क्योंकि अगर कोई ट्विग गलती से भी गलत तरीके से कट गई और अच्छी नहीं रही तो कोई एलिफेंट ऐसी अनइवन ट्विग को नहीं खाता है, इसीलिए उसके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। It was not an easy job to get twigs and saplings for curry. करी के लिए खाने पीने का सामान लेना बहुत इजी नहीं था। I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. उसके लिए स्पेशल ट्विग्स चूज करना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि हर तरह के ट्री के ऊपर चढ़ना पड़ता था और चेक करना पड़ता था कि कौन सी ट्विग टेंडर है और डिलीशियस है। As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March. अच्छा रुको, उसको बहुत ज्यादा शौक था यंग प्लांट्स को, यंग ट्रीज होते हैं जो अभी अभी ट्री बने हैं, उनकी ब्रांचेस को खाने का। ठीक है, अब क्या हुआ, और मैं वही कलेक्ट करता था। एक दिन क्या हुआ, जब मैं ये कलेक्ट कर रहा था, स्प्रिंग सीजन चल रहा था, मार्च का मंथ था, when I suddenly heard curry calling to me in the distance, कि अचानक से मुझे करी की आवाज आई जो थोड़ी ही दूरी पर था, तो मुझे उसकी आवाज आई कि वो मुझे बुला रहा है। As he was still very young, the call was more like that of baby than an elephant. अभी भी वो बहुत बड़ा नहीं हुआ था, तो उसकी आवाज में ना बड़ों जैसी आवाज नहीं थी, छोटे बच्चों वाली, मतलब जो बेबी एलिफेंट होते हैं उसकी जैसी ही आवाज थी। I thought somebody was hurting him. मुझे लगा कि शायद कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है। So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him.
तो मैं ट्री से नीचे उतरा और बहुत तेजी से भागा जंगल के किनारे तक जहां मैं उसको छोड़कर आया था, लेकिन वो वहां पर नहीं था. बट ही वॉज नॉट देयर. आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम. मैंने सब जगह देख लिया बट मुझे वो नहीं मिला. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर. अब मैं पानी के किनारे, जो रिवर थी उसके किनारे पर पहुंचा. एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस. और मैंने देखा कि पानी की सरफेस पर कुछ ब्लैक चीज बाहर आने का ट्राई कर रही है. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. फिर अचानक से वो ब्लैक चीज थोड़ी ऊपर हुई तो मुझे मालूम पड़ा कि ये मेरे एलिफेंट की ट्रंक है, उसकी सूंड है. I thought he was drowning. मुझे लगा कि मेरा एलिफेंट डूब रहा है. I was helpless because I could not jump into the water. मैं लाचार था, मैं कुछ कर नहीं सकता था, वाटर में जंप नहीं कर सकता था. And save the 400 pounds of him since he was much higher than I. अब मैं उसको नहीं बचा सकता था क्योंकि वो वेट में और हाइट में दोनों में ही मुझसे ज्यादा था. But I saw his back rise above the water. फिर मैंने देखा कि उसके ट्रंक के साथ साथ उसका बैक का पार्ट भी बाहर आ गया है. And the moment he caught my eye, और जैसे ही उसकी नजर मुझसे मिली, he began to trumpet. उसने ट्रम्पेटिंग करना शुरू किया and struggle up to the shore, और किनारे तक आने की कोशिश करने लगा. Then, still trumpeting, he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. फिर उसने बाहर आकर क्या किया, ट्रम्पेटिंग आवाज को करनी शुरू करी, मतलब कंटिन्यू रखी. उसने मुझे धक्का दे दिया पानी में, और पानी के मैं अंदर नीचे जब थोड़ा सा अंदर गया तो मैंने देखा कि रिवर के बॉटम पे, इतनी डीप रिवर नहीं थी लेकिन रिवर के बॉटम पे एक बॉय फ्लैट होके गिरा पड़ा, लेटा हुआ है. He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. अब वो जो बच्चा, जो बॉय था, वो पूरी तरह रिवर के बेस को टच नहीं कर रहा था, थोड़ा सा ऊपर ऊपर फ्लोट कर रहा था. I came to the surface of the water to take my breath. मैं बाहर आया पानी के ताकि मैं अपनी सांस ले सकूं. And there Kari was standing. और देखा कि वहां पर करी खड़ा हुआ है. His feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. उसने अपने आप को मिट्टी में फिक्स कर लिया था और अपनी ट्रंक को मेरी तरफ बढ़ाया था ताकि मैं अपना हाथ उसकी ट्रंक से पकड़ लूं और वो मुझे बाहर निकाल ले. I dived down again. मैं दोबारा से अंदर डाइव करा, मैंने डुबकी मारी. And pulled the body of the drowning boy to the surface. और मैंने उसकी बॉडी को, जो बॉय था नीचे, उसकी बॉडी को पकड़कर मैं सरफेस तक लाया. But not being a good swimmer, लेकिन क्योंकि मैं एक अच्छा स्विमर नहीं था, I could not swim ashore. मैं किनारे तक नहीं पहुंच पाया. And the slow current was already dragging me down. और जो धीरे धीरे नदी का बहाव था मुझे अपनी तरफ खींच रहा था और मैं उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था. Seeing us drift by in the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. अब हमें दोनों को, मतलब वो बॉय और मुझे दोनों को, जब करी ने देखा कि हम रिवर के बहाव की वजह से, फ्लो की वजह से और डूबते जा रहे हैं, तो यूजुअली तो करी सारे एक्शन बहुत धीरे धीरे करता है. कुछ भी काम करना हो तो धीरे धीरे सोच सोच के करता है. लेकिन जब उसने ये देखा कि हम लोग इस हालत में हैं, अचानक से वो बाज की तरह आया और पानी के आधे रास्ते तक पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने अपनी ट्रंक को फिर से स्ट्रेच किया. I raised up my hand to catch it and it slipped. मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया उसके ट्रंक को पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ा जैसी तो हाथ स्लिप हो गया. ठीक है. I found myself going under the water again. फिर मुझे दोबारा से फील हुआ कि मैं पानी के नीचे जाता जा रहा हूँ. But this time I found that the water was not very deep. So I sank to the bottom of the river
and doubled my feet under me and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow. तो जब मैंने देखा कि मैं नीचे जा रहा हूँ, तो थोड़ा जब मैं अंदर गया तो वहां मुझे दिखने लगा कि वाटर बहुत गहरा नहीं है। तो मैंने क्या किया, खुद को ऐसे फोल्ड किया, मतलब पैरों को थोड़ा टर्न किया और ऐसे पुश किया। पुश करने के बाद मैं ऊपर जाने लगा, ठीक है, किनारे तक। In spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand, जबकि मुझे मालूम था कि मेरे हाथ में वो जो बॉय है वो भी है। As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. अब जैसे ही मेरी बॉडी ऊपर आई, वाटर के लेवल के ऊपर आई, तो मुझे अपनी गर्दन के आसपास कुछ लंबा सा फील हुआ, ठीक है, मतलब रस्सी के जैसा। I thought some water animal was going to swallow me. मुझे लगा कोई वाटर एनिमल है, स्नेक वगैरह, और वो मुझे अब स्वेलो कर लेगा, निगल लेगा। I heard Curry squealing. अचानक से मुझे करी की आवाज आई and I knew it was his trunk about my neck. और मुझे पता चला कि एक्चुअल में ये करी की ट्रंक है जो मेरी गर्दन के आसपास है। He pulled us both ashore. उसने हम दोनों को किनारे पर खींच लिया। करी was, अब ये वाला पूरा इंसिडेंट ओवर हो गया। अब आगे, करी was like a baby. वो बच्चों की तरह था। He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. करी बच्चों की तरह था, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती थी कि हाँ अच्छे से बिहेव करो, और अगर उसको कोई चीज नहीं बताई जाए ना कि ये तुम जो कर रहे हो इट इज रॉन्ग, तो वो और ज्यादा नॉटी हो जाता है, और ज्यादा मिसचीफ करता है। फॉर इंस्टेंस, वन डे somebody gave him some bananas to eat. अब एक दिन क्या हुआ, किसी ने उसको थोड़े से बनानास दिए खाने के लिए। Very soon he developed a great love for ripe bananas. बहुत जल्दी ही उसको बनानास पसंद आने लगे। We used to keep large plates of fruits on a table near a window in the dining room. हम लोग अक्सर विंडो के पास जो डाइनिंग टेबल था वहां पर एक प्लेट में फ्रूट्स भर कर रखा करते थे डाइनिंग रूम में। One day all the bananas on that table disappeared. अचानक से एक दिन वो सारे के सारे बनानास गायब हो गए। And my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. और मेरी फैमिली ने सारे जो ब्लेम था वो सारे सर्वेंट्स को दिया कि इनमें से ही किसी ने सारे फ्रूट्स खा लिए हैं, ठीक है। A few days later the fruit disappeared again. कुछ दिन के बाद फिर से फ्रूट्स गायब हो गए। This time the blame was put on me. इस बार मेरे ऊपर ब्लेम आया कि मैंने खाए हैं सारे। And I knew I had not done it. और मुझे मालूम था कि मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं है। It made me very angry with my parents and the servants. इससे मैं अपने पेरेंट्स और सर्वेंट्स से बहुत नाराज हो गया। For I was sure they had taken all the food. क्योंकि मुझे पता था कि उनमें से ही किसी ने लिए हैं फ्रूट्स। The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. अब जब नेक्स्ट टाइम फिर से फ्रूट्स गायब हुए तो मैंने देखा कि एक दो बनाना जो है वो करी के पेविलियन में, उसके एरिया में स्मैश्ड पड़े हैं, मतलब एक दो गिर गए होंगे तो वो पड़े हुए थे नीचे। This surprised me very much. इससे तो मैं बहुत ही हैरान हो गया, for I had never seen fruit there. क्योंकि मैंने कभी वहां पर फ्रूट्स देखे ही नहीं थे करी के एरिया में। And as you know, he had always lived on twigs. क्योंकि वो तो हमेशा twigs खाता था। Next day, while I was sitting in the dining room, wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था फ्रूट्स के पास, और अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या मैं थोड़े से फ्रूट्स अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना ले लूं, इतने में अचानक से एक लंबी सी चीज विंडो से आई जो कि काफी तरह स्नेक की तरह लग रही थी, और सीधा वो आई, उसने बनाना उठाए और वो चीज गायब हो गई। I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas. मैं काफी सरप्राइज था क्योंकि मैंने कभी स्नेक्स को नहीं देखा था बनानास खाते हुए।
and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit. और मुझे लगा कि ये बहुत ही खतरनाक स्नेक है जो अंदर आकर फ्रूट्स लेकर चला गया. I crept out of the room. मैं धीरे से रूम के बाहर गया and with great fear in my heart ran out of the house. और बहुत डरते डरते घर से बाहर भागा. Feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruits and kill all of us. मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मुझे लगा वो स्नेक दोबारा से घर में आएगा, फ्रूट्स लेगा और साथ में हम लोगों को भी मार डालेगा. As I went out, I saw Curry's back disappearing in the direction of the pavilion. अब मैं जब बाहर आया तो मैंने देखा कि करी अपने pavilion की तरफ जा रहा है. And I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. और मुझे लगा कि इस समय सिर्फ करी ही है जिसकी कंपनी से मुझे कुछ रिलैक्स मिलेगा. I ran after him into the pavilion. मैं उसके पीछे पीछे भागा and I found him there eating bananas. और मैंने देखा कि वहां पर वो बनानास खा रहा है. I stood still in astonishment. मैं गुस्से में एकदम शॉक हो गया और खड़ा रहा. The bananas were lying one far away from him. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. The instant the trunk looked like a black snake. उसकी जो ट्रंक थी वो ब्लैक स्नेक की तरह लग रही थी. अच्छा, ओके, नाउ दिस मच डन. नेक्स्ट टाइम इट विल बी ओवर. और आप लोगों का अब सिर्फ रुतवा ग्रामर में ऐसा कोई टॉपिक है जो नहीं हुआ? नो मैम. मैम हमारी एग्जाम में सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच ही नहीं हुआ. ठीक है. यस मैम. दिस मच डन. अब आप लोग रुतवा आप लोग रीड कर लेना सारे चैप्टर्स जो आने वाले हैं. नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों से ओरल थोड़ा सा ले लूंगी. ओके मैम. ओके, सो राइट नाउ यू आर हैविंग योर एसएस लेक्चर. Yes, मैम. ओके, लेट मी चेक देन हु इज देयर. गुड इवनिंग. Ma'am, I was having doubts in geography, chapter 1. Sorry, ma'am, chapter 2. In match the following, ma'am. I am not able to find that answers. Ma'am, in our school exam is starting from 3rd June. 3rd. Okay, wait. Shlok? यस मैम. हाँ, तो वीडियो ऑन करना है बेटा. Ma'am, in my school, SST exam is on 36. रुको. मैं सबका लिख रही हूँ आज. पहले मैं सबका वही लिख रही हूँ. एग्जाम्स मुझे लिखवा दो, कोर्स मुझे लिखवा दो. ठीक है, चलो. स्टैंडर्ड 7. यस अंश. यस मैम. डेट बताओ और सिलेबस बताओ. मैम, एग्जाम की डेट की. यस मैम. मैम, सिलेबस है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी, चैप्टर 1 ऑफ सिविक्स एंड चैप्टर 1 and 2 ऑफ हिस्ट्री. और मैम मेरा अंश का एक ही है. मैम, मेरा 10 एक ही क्लास में और एक ही सिलेबस है. ओके, डन. और एग्जाम डेट इज 9 of July. डन. चलो, हो गया. मैम. वेट. मैम. यस मितवा. मैम, मेरी रुतवा की और ध्वनित की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है. सिविक्स में मतलब पीरियड. एक मिनट. मितवा और रुतवा. मैम, मैं रुतवा और ध्वनित है मेरे क्लास में. यस मैम. प्रसन्न और हर्ष वीडियो ऑन रखो.
पायल पटेल, जिया, जिया आप दूसरे से ज्वाइन हुए बेटा, नाम सिर्फ चेंज कर लो अगर हो जाता है तो। ओके मैम। ओके, ध्वनित आज आया नहीं है। मैम उसके पहले के लेक्चर में था। अच्छा चलो, डेट बताओ मुझे आपका, सिलेबस बताओ मुझे। मैम 36/2021। ये मंथ के एंड में, ये मंथ के एंड में सिलेबस बताओ मुझे। यस मैम। मैम सिविक्स का चैप्टर 1, हिस्ट्री में चैप्टर 1 और जियोग्राफी में चैप्टर 1। ओके चलो। मैम पीरियडिक टेस्ट। हाँ हाँ बेटा, सबकी पीरियडिक टेस्ट ही है। दिया चलो बताओ बेटा। मैम हमारे यस मैम, हिस्ट्री में wait, don't talk in between. दिया। यस मैम, हिस्ट्री चैप्टर 1। वेट बेटा, दिया पहले डेट बतानी है। 12th जुलाई। 12th। अब सिलेबस हिस्ट्री चैप्टर 1, जियोग्राफी चैप्टर 1 and 2। ओके, एंड सिविक्स चैप्टर 1। ओके चलो। अब यहाँ पे अंश, दक्ष, मितवा, रुतवा, ध्वनित और दिया, उसके अलावा किसका डेट आया है? बस और कोई नहीं है ना? वेदांत, मैं और दिया एक ही स्कूल में। वेदांत और दिया एक ही स्कूल में है। यस चलो वेदांत का भी हो गया। अब धारा। मैम हमारे स्कूल में सिर्फ डेट आई है, सिलेबस नहीं दिया। बता दो ना बेटा। मैम 5th जुलाई। एसएस की पर्टिकुलर 5th को है? नो मैम। हाँ, तो पहले स्पेसिफिक वो सब्जेक्ट की डेट है तब देना। ओके, नो प्रॉब्लम। जिया आपको? मैम मेरी एग्जाम नहीं है। नहीं है? कितनी खुश होके बोले मेरी एग्जाम ही नहीं है, टेंशन मत लो आप। ऐसा श्लोक को कोई बोल दे तो कितना मजा आ जाए। श्लोक? मैम मेरा अभी तक डेट और सिलेबस कुछ नहीं है। अच्छा, ऐश कर तब तक तो। हर्ष? पर मैम मैम ने बोला है कि आने वाला है, आया नहीं है पर आने वाला है। और हर्ष दोनों वीडियो ऑन करो बेटा, चलो फास्ट। हर्ष आपके स्कूल में एग्जाम, आप सुनाई नहीं दे रहा। यू नॉट ऑडिबल बेटा, नॉट ऑडिबल। प्रसन्न वीडियो ऑन कर दे तू। मैम मेरे क्या बोलते हैं कंप्यूटर में वो नहीं है। अरे यार कैमरा। मैम मैंने आज ही ट्राई किया कंप्यूटर में, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तेरी एग्जाम है क्या? बस उतना हाँ या ना में जवाब दे दे। नो मैम, अभी तक तो कुछ बोला नहीं है, अगर बोलेंगे तो आपको फिर मैं कह दूंगा। यस चलो हर्ष, अभी तुम्हें हर्ष बेटा नहीं सुनाई दे रहा, रिमूव योर ईयर प्लग्स, फिर जाके बोलो तो सुनाई देगा। अब बोलो। नो बेटा, चैट करो। अब आया, थोड़ा आवाज बढ़ाओ आपके डिवाइस का। एक काम करो हर्ष, वापस कनेक्ट हो जाओ, लीव हो जाओ और वापस ज्वाइन हो, मैं आपको ऐड करती हूँ, ठीक है? चलो, so what we were doing in the last lecture? Ma'am, we were doing the civics chapter revision. Okay, प्रिया तू दो डिवाइस से कनेक्ट हुई है बेटा? यस मैम। अच्छा मैम आई हैव डाउट इन वर्कशीट। wait, I'm coming to it, wait. I am coming to worksheets doubt and सभी के डाउट में। ध्वनित आ गया है? यस मैम, आप ऑडिबल है? यस, यू आर ऑडिबल नाउ। यस मैम, मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैम, हमारी एग्जाम अभी फिक्स नहीं बताई है, बट ऐसा बोला है कि 5 जुलाई के बाद कभी भी स्टार्ट होगी। अच्छा। और सिलेबस आ गया है। सिलेबस में मैम हिस्ट्री का चैप्टर 1 और ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है। ओके, तो कोई टेंशन नहीं। ध्वनित वीडियो ऑन करो, श्लोक वीडियो ऑन करो। हाँ, अब याद आया ध्वनित कौन था। मैंने बोला ना, नाम से नहीं मुझे शक्ल से लोग याद रहते हैं। चलो ओके, अभी हर्ष तुम्हारा डाउट था वो सॉल्व करा देती हूँ, फिर दिया का डाउट था। बोलो हर्ष, क्या डाउट था? यस मैम, मेरा मैच द फॉलोइंग है ना, उसके अंदर मुझे मैम लास्ट के 1-2 मिले, बट बाद में मुझे वो 3 नहीं मिल रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश। चैप्टर 2 ज्योग्राफी चैप्टर 2 यू आर टॉकिंग अबाउट? यस मैम। ओके मैम मैं लेके आता हूँ बुक मैम, जस्ट 2 मिनट। हाँ तुम लेकर आओ, तब तक अंश आपको सॉल्व कर पाएगा। अंश
ज्योग्राफी चैप्टर 2 का मैथ द कॉलम के आंसर्स दो उसको। हेलो मैम, आपने अभी तक क्या करवाया था? मैं टेक्स्ट बुक लेके आओ। अभी तक ध्वनि तुम कितने लेट ज्वाइन हुए? पूरा एक चैप्टर खत्म हो गया हमारा। ईमेल में? हाँ, राजधानी एक्सप्रेस भगाई आज मैंने। नहीं, मैं सबकी एग्जाम डेट ले रही थी बेटा। एग्जाम आ रही है ना? यस मैम। कुछ मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया और अभी सबके डाउट सॉल्व कर रही हूँ मैं। ओके मैम। यस मैम, मैं बुक लिया आया। हाँ चलो अंश। मैम मैं ले रहा हूँ। मुझे तो ये लर्न होना चाहिए अंश। चलो उसको फर्स्ट एमसी मैथ द कॉलम का आंसर नहीं मिल रहा है। कोर। सो ऑप्शंस आर देयर। अर्थ सरफेस यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग, मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। मैम वो वाला नहीं मैम वो वाला नहीं है मैम, तो कुछ दूसरा ही है। कौन सा वाला? मैम ज्योग्राफी चैप्टर 2 है और उसमें मैथ द कॉलम। तो वही तो बोल रही हूँ मैं, मैथ द कॉलम। मैं सोचा कुछ सियाल सीमा ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सियाल सीमा नाइफ बेसल्ट ग्रेनाइट। बेटा शो योर टेक्स्ट बुक। मैं नोटबुक में से बोल रहा हूँ, जो आपने वर्कशीट भेजी थी ना उसमें। So you are talking about the worksheet, beta. मेरी भी बाकी है आधी। Wait, then I have to remove the worksheet from my device. Wait. मैम मेरी बाकी है। Very good. मैम आधी बाकी। Very nice. जिन्होंने भी वर्कशीट सॉल्व नहीं की, जिस दिन मैं चेकिंग करूंगी ना, उसको ये सारी वर्कशीट 5 टाइम लिखने को दूंगी। यस मैम आज आया कि होमवर्क में बुक सबमिट करना है वहाँ पे। मैम आज आया मैसेज। हाँ तो अब देखो तुम लोगों को कितनी बार उसको सॉल्व करनी है। यस मैम मैसेज का बुक मैम 5 टाइम। ओके आपका है ज्योग्राफी, राइट बेटा? ज्योग्राफी 2 की वर्कशीट चाहिए आपको। यस मैम मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि हमारे स्कूल में ये सब चैप्टर्स नहीं कंप्लीट हुए। कोई बात नहीं मैम, मेरे स्कूल में भी नहीं हुआ है। जियोग्राफी का फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सो वो मैंने कंप्लीट कर दिया। उसमें डाउट्स क्लियर है करने में। यस मैम मेरे स्कूल में भी। मैम चैप्टर 2 कंप्लीट नहीं हुआ है। चलो चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी, ये इसके आपको डाउट है। सबसे पहले है सेल, तो उसका फुल फॉर्म आएगा डी, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। यस मैम वो मिल गया है, वो मैम मिल गया मुझे। तो कौन सा नहीं मिल रहा? मैम उसके बाद का है ये सिलिका मैग्नीशियम वाला भी मिल गया मैम। ये तो सीमा आएगा ना SIM में। यस एंड द थर्ड इज निफ। यस मैम उसका नहीं मिला मैम। अच्छा ओके, उसका ऑप्शन आई गेस सो मिसिंग है। नहीं ओके वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिखो, बेसल्ट का एग्जांपल आएगा। यस मैम। यस मैम मैम हमें बुक कब सबमिट करनी है चेकिंग के लिए? मेरे को मैसेज नहीं आया। बेसल्ट का एग्जांपल आप आएगा आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और ग्रेनाइट का आएगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, राइट? ओके मैम ओके मैम। मैम नाइफ का आई थिंक निकल एंड फेरियस आएगा ना? यस तो ये यहाँ पे ऑप्शन में मैंने गलत कर दिया है। I have written metamorphic rock, right? So the answer comes nickel and iron, knife का। Okay? मैम इसमें निकल एंड फेरस लिखा है। मैम पेज नंबर 8 वो भी सही है। मैम हमें हमारी बुक कब सबमिट करनी है चेकिंग के लिए? एडमिन ऑफिस में फोन करना है बेटा आपको। यस मैम मैम मुझे मिला है, मैं वो बता देता हूँ। बेटा 6th दिया है ना, स्लेट एंड मार्बल, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। ओके हाँ नीचे है। किसको भी पूछना है वो रेज हैंड करेगा, इन बिटवीन मैम नहीं बोलेगा। हर्ष आपका डाउट सॉल्व हो गया बेटा? यस मैम काट लो दिया।
मैम घाटलोडिया ब्रांच में एसएस की बुक 4th वीक में सबमिट करनी है, 4th सैटरडे। यस, एडमिन ऑफिस में से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है बेटा? यस मैम। ओके चलो दिया, नाउ आई विल कम टू योर डाउट। यस मैम। आपको कौन सी वर्कशीट में डाउट है बेटा? हिस्ट्री चैप्टर 3। वेट, जो मैंने रिसेंटली आपको सेंड किया। यस मैम। वेट, चलो उसमें क्या डाउट है बेटा आपको? इन एमसीक्यूज नंबर 7। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को तो मैंने आपको आंसर्स दे दिए, तो उसमें तो आपको कोई इश्यू होगा नहीं। नो मैम। 7 in whose reign did Sultanate reach its farthest extent? Yes ma'am. Okay. Vedant, can you answer this MCQ? In whose reign, we have already solved this. In whose reign did the Sultanate reach its farthest extent? Options are Tomar, Razia, Alauddin Khilji, or Muhammad bin Tughlaq. Vedant, what is the answer? Yes. Diya, the answer is Muhammad bin Tughlaq, D. Okay, ma'am. Diya, and any other doubt in this worksheet? No, ma'am. Okay. चलो तो आपका रेज हैंड कर दो, हटा दो। ध्वनित, आपका डाउट क्या है? मैम डाउट नहीं, मेरे को एक सवाल पूछना था। हाँ तो वो डाउट ही हुआ ना, सवाल पूछना यानी डाउट ही हुआ ना, बोलो। मैम वो तो सही है मैम, अभी तक मैंने वर्कशीट लिखी नहीं है क्योंकि मैं अभी नया ही आया हूँ इसलिए। मैम तो चलेगा मैम, एक भी वर्कशीट? हाँ चलेगा। जिया पटेल, क्या डाउट है बेटा? मैम जियोग्राफी के वर्कशीट नंबर 1 में चैप्टर 1। हाँ रुको रुको रुको, मैं निकालती हूँ। यस, बोलो अब उसमें क्या हुआ बेटा? मैम उसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, तो मैम उसमें एक्वेरियम आएगा। यस ओके मैम। ओके बेटा, ओके मैम। चलो डन। यस। अब किसी को कोई डाउट है वर्कशीट्स में? चलो मैंने तो लिखी नहीं, मेरे को कैसे होगा? हाँ ओके, तो अभी हम कर रहे थे सिविक्स चैप्टर नंबर 1। जिया, ध्वनित और हर्ष, come to the page number 9. Jia, what are you writing beta? Nothing ma'am. Come to the page number 9. Daksh, on your video. Daksh, on your video. Ma'am, page number 9. Can I read? Wait. Ma'am, can you see me? Yes, now I can. Mitwa, on your video. हर्ष, आप वीडियो ऑन करते हो तो कोई नेट इश्यू हो रहा है आपको? Yes ma'am. Yesterday we have done page number 9. Means the day. चलो जिया। Ma'am, can I read? Yes ma'am. Wait. See, equality in Indian democracy, that part I have to solve. उसमें जो important है वो, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है आपका हेल्थ वाला। ऑलमोस्ट जो स्कूल में सबका सिलेबस है पहले वो मैं खत्म करती हूँ, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूट एवरी पर्सन को इक्वालिटी की तरफ से बताता है। ध्वनित, क्या हो गया आपको, कुछ प्रॉब्लम है? नो मैम। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट रिकॉग्नाइज दैट एवरी पर्सन इज इक्वल। इसका मतलब हर एक इंडिविजुअल जो कंट्री में रहता है, भले वो मेल फीमेल, भले वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी ट्राइब हो, कोई भी एजुकेशन का, इकोनॉमिक स्टेटस का हो,
उसके लिए सभी इक्वालिटी है, कोई भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं होता है। डेमोक्रेटिक इंडिया में principles recognize there is equality to all, right? Now to recognize this equality, our constitution have some provision, right? Come to the page number 10. There are 4 provisions given by the constitution. Jia, Dhwanit and Harsh, do you remember that last lecture में जब हम end कर रहे थे ये session, तो मैंने आपको ये paragraph important mark करवाया था? Yes, ma'am. और ये 4 प्रोविजंस आपको लर्न करने, आज आपको ट्यूशन की बुक में ये 4 प्रोविजंस लिखने हैं। ओके मैम। मैम मेरा थोड़ा नेट सुनाई तो दे रहा है ना बेटा मैं क्या बोल रही हूँ हर्ष? यस मैम, वो तो सुनाई दे रहा है मैम, बट यहाँ पे सिर्फ 2 kbps की स्पीड से। हाँ मैम मितवा, can you repeat that 4 provisions? आई एम रिपीटिंग दैट 4 प्रोविजंस बेटा, मैंने वो खत्म नहीं किया, अभी सिर्फ मैंने ये बोला है कि ये 4 प्रोविजन आप IM पे टिक करो और आपको वो नोटबुक में लिखना है। अब मैं वो 4 प्रोविजन समझा रही हूँ, ठीक है? 4 प्रोविजन है। मैम आप क्या पढ़ा रही हैं? मितवा रेज हैंड करना है बेटा। क्या हो गया, मैं क्या पढ़ा रही हूँ जो लास्ट टाइम हमारा कंटिन्यूएशन में था, चैप्टर नंबर 1 ऑफ सिविक्स। आई एम सॉरी मैम, आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैम आपका आदमी नीचे सिविक्स चैप्टर नंबर 1। ओके मैम। मैम पेज नंबर कौन सा? पेज नंबर 10। लास्ट टाइम हमने जो इम्पोर्टेंट पेज नंबर 10। हाँ हाँ, अभी कोई भी डाउट होगा तो मितवा रेज हैंड करना। ओके, अब यहाँ पे 4 प्रोविजन है। वेदांत 1 बोलेगा फर्स्ट, रुतवा 2nd बोलेगी, अंश 3rd बोलेगा और दिया 4th बोलेगी, ठीक है? वेदांत आपको सबसे पहला प्रोविजन बोलना है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट बुक। उसके बाद जिया, ध्वनित और हर्ष और मितवा वो 4 प्रोविजन रिपीट करोगे। सो प्लीज लिसन इट केयरफुली। वेदांत, द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच रिकॉग्नाइज इक्वालिटी टू ऑल द इंडिविजुअल। व्हाट इज द फर्स्ट प्रोविजन? All the people are equal. It means that every person from president of the country to the domestic worker like Kanta, everyone is equal in front of the law. ध्वनिता फर्स्ट समझे प्रोविजन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूट प्रोवाइड कर रहा है? तो मैम वॉइस क्रैक हो रही थी उससे। किसकी वॉइस क्रैक हो रही थी? मैम बोल रहा था ना उसको। किसकी वॉइस क्रैक हो रही है वेदांत? वेट, किसकी वॉइस? कोई मेरी वॉइस क्रैक हो रही थी? आपकी तो क्लियर आ रही है, पर वेदांत की? यस मैम, जो फर्स्ट प्रोविजन बोला मैं उसकी वॉइस थोड़ी क्रैक हो गई। ओके, पर मैं रिपीट कर रही हूँ वापस। ओके, द फर्स्ट प्रोविजन जो वेदांत ने बोला, एवरी पर्सन इज इक्वल। इफ यू आर ऑन योर ऑफ योर माइक, मितवा माइक को ऑफ कर दो, म्यूट कर दो आपके माइक को। मैम मेरा माइक बंद ही है। तुम 2 डिवाइस से ज्वाइन हुई हो बेटा और बोल रही हो कि मेरा माइक बंद है। मैम उस डिवाइस से मैंने लीव कर दिया मैम, उसमें भी नेट नहीं आ रहा था। ओके, द फर्स्ट प्रोविजन इज एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि वो प्रेसिडेंट हो या वो नॉर्मल डोमेस्टिक वर्कर हो, सबके लिए इक्वल लॉ है। रुतवा 2nd क्या है प्रोविजन? No person can be discrimination against on the basis of religion, race, caste, place of birth or whether they are female or male. ओके, तो कोई भी पर्सन आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो उसके कास्ट के बेसिस पे। जैसे कि हमने पढ़ा, कौन सा एग्जाम्पल, कास्ट के बेसिस में किसको डिस्क्रिमिनेट किया था जिया? मैम कांता को कास्ट के बेसिस में डिस्क्रिमिनेट किया था? नो मैम, उसको इक्वलिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया था। उसको इक्वालिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया था। जिया पहले तो मुझे वो आप नीचे ऐसे मुंडी रख के कर क्या रहे हो, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे हो मैं जो समझा रही हूँ। सुनो बेटा मैं क्या बोल रही हूँ,
कास्ट के बेसिस पे किसको डिस्क्रिमिनेट किया था? दक्ष, उसको बोलो आंसर। मैम दलित को। मैम मैं बोलूं? मैम वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि। वाल्मीकि को। बेटा समझो आप, मैं आपके लिए ये वापस सारा रिपीट कर रही हूँ। दक्ष, प्रिया, वेदांत, अंश को तो ये पूरा चैप्टर रट गया है। दिस इज फॉर यू मितवा, ध्वनित एंड हर्ष। बेटा उनको ये पूरा बाय हार्ट है। मैं नींद में से भी उठा के उन बच्चों को बोलूंगी ना तो वो परफेक्ट आंसर देंगे। ठीक है जिया, यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन। सी, here the second provision given by a constitution is that on basis of caste आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हो, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित को डिस्क्रिमिनेट किया था। सेकेंड ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, राइट? धारा किसको किया था ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन? मैम मिसेस एंड मिस्टर अंसारी। यस, मिसेस एंड मिसेस अंसारी को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन तो आप नहीं कर सकते हो। रेस, रेस का मतलब मैंने आपको समझाया था। रेस क्या होता है? रेस यानी दौड़ने वाली रेस नहीं, यहाँ पे रेस यानी कि क्या होता है? नो, नॉट द रिलीजन रेस। रेस यानी कलर, रेसिज्म, राइट? रेस यानी ब्लैक एंड कलरफुल, ब्लैक एंड व्हाइट। आप किसी को ब्लैक एंड व्हाइट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। मैम ऑल्सो कलरफुल। मैम ऑल्सो कलरफुल। यस, कलरफुल, नॉट कलरफुल बेटा, इट इज ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, चलो। एंड ऑन द बर्थ, यानी कि आप लोअर कास्ट में बॉर्न हुए, हिंदू में ही लोअर अपर होता है। एंड जेंडर, मेल एंड फीमेल, जस्ट बिकॉज शी इज अ फीमेल आप उसको वोट करने का राइट नहीं दे सकते, तो ये गलत डिस्क्रिमिनेशन है। क्लियर एवरीवन? थर्ड किसको बोलना था? दिया आपको बोलना था थर्ड? अंश को बोलना था। हाँ बोलो अंश। Third, every person has access to all public places, including playground, hotels, shops, and markets. All persons can use public availability, क्योंकि दलित जो थे उनको क्या किया जाता था? टेम्पल्स में नहीं जाने देते थे, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाने देते थे, मार्केट में नहीं जाने देते थे। तो कोई भी कास्ट के हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी रेस का हो, you are allowed to go in all the public places like playground, hotel, temple, shop, market, roads, bathing ghats, etc. Clear with the third point, Dhwanit? Yes, ma'am. Okay. And the fourth one, Dhara, what is the fourth one? What, ma'am? What is the fourth provision provided by Indian Constitution? Ma'am, untouchability. Yes, ban on the practice of untouchability. आप untouchability बिल्कुल भी practice नहीं कर सकते हो। ये बहुत ही important है। ये सबको आज ध्वनित, मितवा, जिया, हर्ष, ये 4 प्रोविजंस टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। वैसे का वैसा आपको लिखना है नोटबुक में। untouchability means क्या होता है? एक मिनट, क्या बेटा ध्वनित? untouchability means, अच्छा, you want, okay, I'll explain the meaning of untouchability. जो दलित है ना, अच्छा आपको ये मेरे को दलित जो होते हैं उनको अनटचेबल बोलते हैं, अछूत। तो उनके साथ जो हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना, वो प्रैक्टिस हो गई अनटचेबिलिटी। क्लियर? मैम कैन यू एक बार फिर से अंडरलाइन करो ना फोर्थ प्रोविजन? इट इज गिवन ओवर देयर ओनली, पूरा पैराग्राफ है। देखो, कम टू द पेज नंबर 10, द होल सेकंड पैराग्राफ, all the points are given line to line. That whole paragraph you have to write. मैम आपने इम्पोर्टेंट पैराग्राफ किया था तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड करके है ही। What मितवा? मैम वो ध्वनित कह रहा था तो उसको तो कह रही थी कि आपने जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ पूरा अंडरलाइन कराया था ना, उसमें फर्स्ट सेकंड करके वो कॉन्स्टिट्यूशन है ही पूरा। हाँ, वो पैराग्राफ में पूरा पैराग्राफ है बेटा, वो आपको करना है। ध्वनित क्लियर? ओके, द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी से लेके पूरा। Yes, there is recognition of equality includes some of the following provision. पढ़ो वो पैराग्राफ पढ़ो। The recognition of equality includes some of the following provisions in Constitution. First, that every person is equal before the law.
What this means that every person from the president of the country of to Kanta, a domestic worker, has to obey the same laws. Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, places of birth, or whether they are female or male. Third, every person has access to public places including playgrounds, hotels, shops, and markets. All persons can use publicly available wells, roads, and bathing ghats. Fourth, untouchability has been abolished. Abolished यानी removed, निकाल देना. abolished. Clear? Harsh, Mitwa, Dwanit and Jia. Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. Okay. Now see, Harsh, you have to read the another paragraph. Ma'am. Yes. Ma'am, can I read? Wait. अंश क्या हो गया बेटा? Also tell that when if a lower caste men want to go to buy something, they have to take a piece of a wood to cover them. Yes. Okay. चलो. प्रसन्न. Yes, ma'am. हाँ, चलो रीड. हर्ष के थोड़े नेट में शायद से इश्यू है, वो नहीं उसका कनेक्ट हो रहा है. आपको पता है ना पेज नंबर 10 में जो लास्ट पैराग्राफ है वो पढ़ना है. प्रसन्न. मैम कैन आई? जिया दे रही हूँ, आपको भी टर्न दे रही हूँ. मैम मेरे को भी देना. हाँ, तेको तो सबसे पहले दिया. मैम मुझे भी रीड करना है. प्रसन्न हाँ या ना बोलो तो मैं जिया को बोल दूं. चलो जिया करो. नेक्स्ट. अच्छा रुको जिया, नेक्स्ट लेक्चर में ज्योग्राफी 1 यहाँ से मितवा, जिया, वेदांत और हर्ष. आपका ज्योग्राफी 1 भी बाकी है ना? यस मैम. मैम स्कूल में कंप्लीट हो गया आज और क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए. हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो कर लूंगी क्योंकि एग्जाम में आपको सिविक्स 2 तो ऐसे भी आने नहीं वाला है. मैम जियोग्राफी का चैप्टर 1 है ना, मेरा इतना पक्का हो गया कि जो आपने जो उसकी जो मतलब वर्कशीट थी ना, वो मैंने किसी की भी हेल्प के बगैर ही कर दी टेक्स्ट बुक की. अच्छा ओके. चलो जिया read this paragraph. The two ways in which the government has treated in implement. Try to implement का मतलब कि कोई भी लॉ होता है वो लॉ को प्रैक्टिकली वर्कआउट करवाना, उसको इम्प्लीमेंट बोलते हैं. सिर्फ मैंने ऐसे बोल दिया कि आप होमवर्क नहीं करोगे तो 5 टाइम लिखना है, वो सिर्फ बोला मैंने, रूल बनाया, पर 5 बार आपसे लिखवाना यानी वो इम्प्लीमेंट होगा. समझ में आया इम्प्लीमेंट का मतलब? ओके. has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities. wait मुझे इतना एग्जाम समझा लें. अब गवर्नमेंट ना सभी को इक्वालिटी मिले उसके लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने गारंटी दिया है कि जो भी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज है, जैसे कि लोअर कास्ट, रिलीजन से जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, माइनॉरिटी, वो सब को इक्वालिटी मिले, इसलिए उन्होंने 2 टाइप उन्होंने ट्राई किए हैं. पहले लॉ बनाना और दूसरा प्रोग्राम्स करना. तो वो दोनों हम पढ़ेंगे. ओके कंटिन्यू. There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who has been treated unequal for certain countries.
These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past. Okay. Ma'am. Yes, Peter. Ma'am, I had Ma'am, doubt. we are on which page number? Now we are on the page number 11. Wait. First, let me explain. Then I will solve your doubt. Okay. Ma'am, what is meaning of schemes? Wait. Now see. Now सबसे पहले उन्होंने लॉ लाए. There are several law in India जो हर एक सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करता है और सबको इक्वली ट्रीट देने का राइट देता है. इन एडिशन टू लॉ गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स यानी प्रोग्राम्स, राइट, जैसे कि बेटी बचाओ ये स्कीम है, ये प्रोग्राम है. बेटी पढ़ाओ ये भी स्कीम है, प्रोग्राम है. तो ये जो कम्युनिटीज है उनकी लाइफ ज्यादा अच्छी तरह से बेहतर हो, वो इक्वली ट्रीट हो हर एक सेंचुरी में, तो ये अलग अलग लॉ और प्रोग्राम के साथ आते हैं. ये स्कीम्स ये ट्राई करते हैं कि ये जो कम्युनिटी है उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले और पास्ट में जो उनके साथ हुआ वो प्रेजेंट और फ्यूचर में ना. ओके अब जिसको डाउट है वो रेज हैंड करे. मैम ना बोले वो रेज हैंड करे. चलो किसी को डाउट नहीं है ना? मेरे पुराने यहाँ पे जो बच्चे हैं मुझे पता है उनको डाउट नहीं है. नाउ वी विल कम टू द वेरियस स्कीम्स, राइट. वेदांत आपको याद है देखे बगैर आपको मुझे एक स्कीम का आंसर दे सकते हो? यस बोलो बेटा कौन सा स्कीम था वो प्रोग्राम? यस मिड डे मील स्कीम. सो व्हाट इज अ मिड डे मील प्रोग्राम और उसके काफी सारे बेनिफिट्स है. यस अंश. मैम मिड डे मील is a type of thing that from school the poor people who come to study in government school they get food, so they not have to go home, and sometimes if they go home and do not come back to schools. Yes, right. And what are the benefits? You also told us the benefit, right? Because वो जाते हैं तो वापस आते नहीं है क्योंकि उनको खाने की प्रॉब्लम होती है. ठीक है. If they will eat, so they will no need to go back home, right? Okay. हर्ष. चलो रुतवा तुम रीड करोगी बेटा ये पैराग्राफ? Yes, ma'am. चलो. One of the steps taken by government includes the midday meal. Ma'am, what's that? Scheme. This refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001 the Supreme Court asked all the state governments to begin this program in their schools within 6 months. ओके बेटा बस यहाँ तक पहले रुको. तो सबसे पहला स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया वो था मिड डे मील स्कीम. जो उसकी स्कीम और प्रोग्राम है ध्वनि, जिया, हर्ष, आपको याद रखना है मितवा. मिड डे मील ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल यानी कि जो प्राइमरी से भी नीचे जो छोटी स्कूल्स होती है जहाँ पे बच्चों को कुक्ड लंच वो प्रोवाइड करते थे. सबसे पहला स्टेट जिसने मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस किया था वो कौन सी थी? तमिलनाडु. वो कौन सी थी बेटा? यस. और कौन से साल में? 2001. सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट को फिर बोला कि आप सभी स्टेट गवर्नमेंट ये स्कीम शुरू करो. देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यानी सुप्रीम कोर्ट को भी राइट है सारे पावर्स के. आपने देखा कोई गवर्नमेंट ने नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया सबको. तो प्लीज ये याद रखना आप कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी पूरे लॉज और रूल्स के ऑर्डर्स के पावर होते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला कि विद इन 6 मंथ वो सारे ये मिड डे मील स्कीम शुरू कर दे. क्लियर टिल नाउ? रुतवा कंटिन्यू. Yes, ma'am. Continue. This program has had many positive effects. These include the fact that more poor children have begun
enrolling and regularly attend school. ओके तो सबसे Teachers पहले reported एक मिनट रुतवा, बहुत सारे ये मिड डे मील स्कीम के बहुत सारे बेनिफिट्स थे। सबसे पहला बेनिफिट ये था, जो पुअर बच्चा था वो क्यों नहीं एनरोल हो रहा था, क्योंकि उसको खाने की भी प्रॉब्लम थी। तो वो एनरोल होना यानी एडमिशन लेना, रेगुलर स्कूल अटेंड करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ओके कंटिन्यू रुतवा। Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and would not return to school, but now with the midday meal being provided in school, they are attending as meal being provided in school. Their attendance has improved. ओके वेट, तो टीचर ने फिर जब ये स्कीम शुरू होने के बाद सर्वे किया तो टीचर ने ये बताया कि मिड डे मील स्कीम से ये फायदा हुआ कि जो बच्चे घर जाते थे लंच करने के लिए, उसके बाद वो कभी भी वापस आते नहीं थे। ओके तो आफ्टर प्रोवाइडिंग लंच बच्चों को अटेंडेंस पूरी इंप्रूव हो गई, उन्हें घर जाने की नीड नहीं थी, उनको पूरा लंच यहाँ पे मिल रहा था। या मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट। मैम थोड़ी स्कूल्स में लोग हैं ना, उनको 500 रुपीज भी देते हैं पर मंथ बच्चों को। क्या हर्ष? मैम गवर्नमेंट स्कूल्स में जो लोग गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं वो पर मंथ 500 रुपीज भी देते हैं। 500? यस मैम, मैंने कहीं पे देखा था मैम कि है ना कहीं पे राजस्थान की तरफ है ना, वहाँ पे कोई स्कूल है ना एक गाँव, वहाँ पे वो लोग गरीब बच्चों को 500 रुपीज दे रहे हैं जो स्कूल में पढ़ने आते हैं, और उनसे कोई फीस नहीं ली जाती। क्यों देते, आप बताओगे क्यों दिया होगा? मैम क्योंकि वो लोग बहुत गरीब है और उन लोगों का, और अगर वो नहीं पढ़ने क्यों नहीं आते थे, क्योंकि बहुत गरीब थे तो वो लेबर यानी वो काम करते थे, राइट? काम करते। हाँ तो इसीलिए उनको पैसे अभी उनको शिक्षा भी मिलती है और उनको पैसा भी मिलता है। यस यस राइट। ओके चलो रुतवा कंटिन्यू। Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so. ओके तो जो मदर होती थी उनको इन बिटवीन उनके बच्चे स्कूल से आते थे, उनको लंच के लिए प्रोवाइड करने के लिए उनका काम छोड़ना पड़ता था, तो अब ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दे कैन कैरी देयर वर्क विदाउट एनी इंटरप्शन। ओके कंटिन्यू। This program has also helped reduce caste prejudice because children of all castes in the school eat meal together, and in quite a few places Dalit women have been employed to cook the meal. The midday meal program also helps reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. Okay, so this program also help to reduce caste prejudice. Caste prejudice यानी कि लोअर अपर कास्ट के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होना, तो वो रिमूव हो गया और दोनों ही कास्ट के बच्चे स्कूल में एक साथ ही बैठ के खाना खाते थे, राइट? और दूसरी काफी जगहों पे ये जो खाना बनाने का काम होता था स्कूल में वो यूजुअली दलित वुमेन को ही देते थे, तो ये कास्ट की डिस्क्रिमिनेशन था वो रिमूव हो गया बिकॉज ऑफ मिड डे मील। मिड डे मील में जो पुअर बच्चे थे जो भूख के मारे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सकते थे, तो उनका जो हंगर प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। जो एम्प्टी स्टमक उनको बैठना पड़ता, बोलते हैं ना खाली पेट होता है तो दिमाग भी नहीं चलता हमारा, है ना ध्वनित? तुझे हम 2 टाइम का खाना ना दे और बोले तेरे को इतना सारा पढ़ना है तो तू पढ़ेगा? नो मैम। देखा, नो मैम। तो वो बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ में समझा कि मिड डे मील क्या है, मिड डे मील प्रोग्राम कहाँ पे शुरू हुआ और मिड डे मील के बेनिफिट्स क्या है। अब किसी को भी डाउट है तो वो रेज हैंड करेगा। मैम नो डाउट। मैम यस मैं अपने का गवर्नमेंट रेज हैंड में नहीं पता चलता। अब बोल। मैम वो गवर्नमेंट 500 रुपीज देती थी, तो जाना है 500 रुपीज लेने जाना है? नो मैम, वो गवर्नमेंट खाने के लिए देती थी या फिर ऐसे ही देती?
वो बहुत गरीब थे। देखो वही तो हमने डिस्कस किया हर्ष के साथ कि वो पहले पढ़ने क्यों नहीं आते थे, इतने गरीब थे कि उनको कमाने जाना पड़ता था, राइट? पैसे थे नहीं उनके, तो वो वही सोचे कि हम पढ़ के क्या करें, उससे अच्छा वो 4 घंटे हम कमाएंगे, हमारे हाथ पैसे आएंगे तो हम खाना खाएंगे। वो जिस दिन अर्न करते थे, मान लो 4 घंटे उन्होंने मजदूरी की, वो 4 घंटे का उनका पैसा मिला, उसी पैसों से उन्होंने खाना खरीदा। डेली वेजेस बोलते हैं, राइट? एवरी डे दे अर्न एंड एवरी डे दे ईट, ऐसा था। पूरे महीने का राशन उनके घर पे नहीं होता था, इतना गरीब होते थे। तो दे केम विद अ डिफरेंट स्कीम। हर्ष ने बोला कि वो अलग स्कीम के साथ आते हैं कि बच्चे स्कूल में आए तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। भाई आप फ्री में पढ़ो और आपको हम 500 रुपए भी देते तो वो पैसे से आप खाना भी खाना, ठीक है? सो इट इज नोन एज अ डिफरेंट स्कीम। समझ में आया मैम? ये जो कौन सी टेम्पररी जॉब जो रहती है, रोज पैसे देते हैं, वैसी डेली वेजेस बोलते हैं उसको, टेम्पररी जॉब नहीं बोलते, डेली वेजेस बोलते हैं। हाँ, हमें 6 में ऐसा बताया था। हाँ, ओके, क्लियर? चलो मितवा बोलो, क्या डाउट है? मैम अभी भी हम लोग अगर कहीं पे जाते हैं ना घूमने, तो वहाँ पे तो छोटे छोटे गांव होते हैं ना, तो जहाँ पे पुअर पीपल्स रहते हैं, तो वैसे भी आज भी है ना, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे छोटे छोटे दलित बच्चे होते हैं ना, वो लोग काम करने आते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। वो तो है बेटा। इसमें मेरे गांव में भी अगर कुछ काम हो तो वो दलित बच्चों को बुलाते हैं और वो लोग सब काम करके जाते हैं। हाँ। जैसे कि कुछ साफ सफाई करवानी हो नीचे ग्राउंड फ्लोर की, या फिर कुछ जहाँ पे भैंस गाय बांधते हो वहाँ पे कुछ साफ सफाई करवानी हो, ऐसे वहाँ पे वो लोगों को बुलाते हैं। ओके ओके, चलो अंश, धारा और अंश वीडियो क्यों ऑफ कर दिया दोनों ने? मिड डे मील सुन के खाना चले गए क्या दोनों? नो मैम। तो फिर चलो दक्ष, ओ दक्ष ने भी वीडियो ऑफ कर दिया है। यस मैम। क्या गया, कहाँ चला गया? सबको भूख लग गई। मैं हाँ देखो, मिड डे मील लेने गया था। क्या लेने गया था? खाना। देखा, मिड डे मील स्कीम सुन के उसको खाना याद आ गया। चलो अभी दक्ष तुम्हें उसके नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ना है। यस मैम। एक सेकेंड। वाइल गवर्नमेंट, वो वाला ना, वाइल। हाँ। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. While the midday meal program has helped in increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big difference in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. Even today, there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected. This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. ओके, थैंक यू दक्ष। अब खा लो जो खाना है। अब गवर्नमेंट प्रोग्राम हमने यहाँ पे पढ़ा, गवर्नमेंट के स्कीम, गवर्नमेंट के प्रोग्राम जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इक्वालिटी के लिए, कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। बट फिर भी हमें काफी कुछ गवर्नमेंट को इस पे वर्कआउट करने की जरूरत है। जैसे मिड डे मील प्रोग्राम ने काफी बच्चों की अटेंडेंस इंक्रीज तो कर दिया है स्कूल में, वो बच्चों के स्कूल में, राइट? पर फिर भी हमारे कंट्री में प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, यानी रिच बच्चे जो स्कूल अटेंड करते हैं और पुअर बच्चे, उसमें हमें काफी डिफरेंस देखने को मिलता है, राइट? इवन टुडे काफी कंट्री में, काफी स्कूल्स हमारे कंट्री में जहाँ पे दलित बच्चों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भले वो गवर्नमेंट स्कूल हो फिर भी उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। एग्जाम्पल हमने देखा था ओम प्रकाश वाल्मीकि। These children are forced for such unequal situation, dignity. तो
पीपल शुड रिफ्यूज। ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, हमें भी ट्राई करना चाहिए कि हम लॉ के हिसाब से वर्कआउट करें। यस श्लोक, व्हाट हैपेंड? मैम मेरा अभी बस सिलेबस आ गया, अभी के अभी। अभी के अभी कब से तुम इन आउट गेम खेल रहे थे? मैम गेम नहीं खेल रहा था, तो क्या कर रहे थे? दीदी को टैबलेट चाहिए था इसलिए। अच्छा, तो तुमने अभी कहाँ से ज्वाइन किया? मैं फोन में से। तो पहले से ही फोन से नहीं कनेक्ट हो सकते हो? तब दीदी को फोन चाहिए था। कभी तेरे कुत्ते का प्रॉब्लम होता है, कभी तेरा दीदी का प्रॉब्लम होता है, पूरा प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है तू। बताओ सिलेबस। मैम 13th जुलाई को है। और मैम हिस्ट्री में ट्रेसिंग चेन थ्रू 1000 ईयर, ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट और सिविक्स में ऑन। श्लोक, हिस्ट्री में कौन सा है? ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। ज्योग्राफी में फर्स्ट। और एनवायरनमेंट। सिविक्स में ऑन इक्वालिटी। चलो ओके। मैम नाउ मे आई रीड? मैम नाउ मे आई रीड? Yes, 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 Harsh. Wait. Yes, ध्वनित. मैम। हाँ ध्वनित, बोलो बेटा। मितवा ने या फिर मितवा ने सिलेबस बता दिया? हाँ, कब का लिख दिया मैंने, डोंट वरी। चलो हर्ष, रीड करो बेटा। Yes, ma'am. One of the main reasons for this is that attitudes change very slowly. Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economical status, and because they are women. It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitudes can change. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle, and one in each individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book. Okay, so one of the main reason कि ये बहुत जो चेंज हो रहा है, भले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉज रूल्स बनाए पर फिर भी इनइक्वालिटी दिख रहा है। ये लोग हमारे अवेयर नहीं है, लॉ को हम फॉलो नहीं कर रहे, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। हम आज भी पीपल को अनइक्वल ट्रीट कर रहे हैं, उनके कास्ट पे, रिलीजन पे, डिसेबिलिटी पे, इकोनॉमिक स्टेटस पे, राइट? इट इज ओनली व्हेन पीपल, हम खुद बिलीव करेंगे, हम खुद किसी को इस तरीके से ट्रीट नहीं करें, हमारा खुद का एटीट्यूड जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, हम ये चेंज नहीं ला पाएंगे। सो इफ यू वांट इक्वालिटी कोई भी सोसाइटी में, तो इंडिविजुअल को खुद को उसका एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। ओके, नाउ हियर इट इज अ लास्ट पार्ट जिसमें हमें बताया है दूसरी कंट्री। मैम दिया 2 डिवाइस से ज्वाइन हुई है। क्या बेटा हर्ष? मैम दिया 2 डिवाइस से ज्वाइन हुई है। जिया 2 डिवाइस से ज्वाइन हुई है, ऐसा बोल रहे हो? मैम दिया पता है बेटा, दिया 2 डिवाइस से ज्वाइन हुई है, मुझे पता है, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर से पता है बेटा हर्ष। मैम वो पैराग्राफ मैं रीड करूं? नहीं, आपने किया ना, ध्वनित ने किया, हर्ष ने किया, मितवा बाकी है। मैम मैं भी बाकी हूँ। नाउ द इश्यू ऑफ इक्वालिटी, दूसरी डेमोक्रेसी कंट्री का हम अभी तक हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे, अभी तक हमने इनइक्वालिटी, कास्ट और रिलीजन कौन सी कंट्री के बारे में पढ़ा? इंडिया। अब ये जो टॉपिक है हम दूसरी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। मितवा रीड। Yes, ma'am. Issue of equality in other democracies. You are probably wondering whether India is the only democracy country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around while community struggles. So, for example, in the United States of America, the African Americans whose ancestors were the slaves
who were brought over the Africa continue to describe their lives today as largely unequal. This despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African Americans. Periodic to this, African Americans, prior to this, African Americans were treated extremely unequal in the United States and denied equality through laws. For examples, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to the seat. Okay, so this is the example of the one of the developed democratic country, that is the United States of America, right? A lot of struggle have to be faced by the African American. Ansh, African American कौन होते हैं? Ma'am, the people who born in Africa and live in America. Ma'am, can I say? Yes, you can. Ma'am, the people who born in Africa and brought to America as slaves. Slaves, yes. जिनको वहां पे लेके गए थे गुलाम करने के लिए. Okay, banded laborers. कौन से laborers थे? वो banded laborers थे. तो उनको वहां पे लेके गए थे स्लेव करने के लिए. तो उनकी बात है कि कैसे 1950 में इक्वल राइट के लिए ये अफ्रीकन, कैन यू गिव मी वन ऑफ द फेमस अफ्रीकन अमेरिकन रीसेंट एग्जांपल फ्यू इयर्स बैक जो यूएस के प्रेसिडेंट थे? मैम बैरक ओबामा. Yes, he was an African American, belonged to this slave family. Okay, clear बेटा everyone? Yes. Okay. So हम उसके बारे और उनके साथ एक एग्जांपल दिया गया है कि जब वो बस में he was choose because he was very polite person. Yes, he was very. And what happened after Trump was elected? Ma'am, he was very discussed. He was ignored and very ignored. Yes, very right. Okay. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जब वो ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ हर्ष, अभी मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ कि जब भी अफ्रीकन अमेरिकन बस में ट्रैवल करते थे तो उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. या तो पूरे बस में उनको पीछे बैठना है और अगर जगह नहीं है और कोई भी व्हाइट पर्सन है तो उनको खड़े हो जाना पड़ेगा, राइट? उनको सीट दे देनी पड़ेगी. तो इस पे किसने आवाज उठाई थी धारा? मैम रोजा पार्क्स. रोजा पारिक जो अफ्रीकन अमेरिकन विमेन थी और वो 1 दिसंबर 1955 में वो बस में ट्रैवल कर रही थी और उसने एक एजिटेशन बताया और उसके बाद सिविल राइट मूवमेंट शुरू करने में आई 1964. ओके, ये लास्ट है. कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं? वेदांत पढ़ो. Yes. Rosa Parks was an African American woman tired from a long day at work. She refused to give up her seat on a bus to a white man on December 1st, 1955. Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated, and which came to be known as the Civil Rights Movement. The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion, or national origin. It also started that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools. ओके, सो जब रोजा पारिक ने मना किया उसके बाद बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ, एक सिविल राइट मूवमेंट शुरू हुआ. सिविल राइट एक्ट पास करने में 1964 जिसमें ये बोला रेस, देखो यहाँ पे आया ना रेस, रेसिज्म यानी कलर के बेस पे
रिलीजन और नेशनल ओरिजिन, ये 3 के बेस आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। इसके बेस पे आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। अब जो भी अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन है उनको उनके लिए कोई भी सेपरेट स्कूल नहीं होगा, वो हर जो कॉमन स्कूल है उसमें जाएंगे, राइट। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ता था, फ्यूअर फैसिलिटीज दी जाती थी, राइट। वाइट स्टूडेंट अब बीच में स्टक हो गए थे, फोन आया था मैंने कट किया बेटा, इसलिए। ओके, मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन गवर्नमेंट स्कूल अफोर्ड कर सकते थे, प्राइवेट स्कूल नहीं जा पाते थे, वाइट ही जा पाते थे। ओके, तो ओवर हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर। एक आर्टिकल है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में 2 चीज है वो खत्म कर लूंगी और ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगी। ओके, चलो, आई एम एंडिंग द सेशन। बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye.